Hare Krishna. Welcome all of you once again in our morning Bhagavad Gita class, which is happening after a long time. After Balram Purnima, we are meeting. I mean, we met before Balram Purnima, right? So we have a weekly class which happens every 2 months. है ना? So Balram Purnima के पहले we were discussing 1.24, right? मैं right? उसके आगे नहीं गए थे ना? 25 चल रहा था, 24 हो गया था. अनुपम प्रभु had taken it. Yes. So yeah, so that after that we have not met. Good. So see, we are which section we are in right now? In the first chapter of Bhagavad Gita, we are divided into sections, right? We have noted it down. So what section we are in? Krishna as Bhakta Vatsal, and that goes from 1.21 to 27. So we are towards the end of this section now, 24, 25, 26, 27, right? ये सब होगा. उसके बाद में another section will start, a first chapter, right? That goes from 1.28 to 4.6. Okay, and that is practically the end of the first chapter, right? So the first chapter is divided into 2 sections. First section is the introduction of all the characters and of the scene, introduction of the scene, what is going on, है ना? तो वो सब introduction है. Section 2 is Krishna as Bhakta Vatsal, ठीक है? और इसमें अभी Arjuna is going to submit his doubts to Krishna कि क्या क्या हो रहा है, मुझे क्या लग रहा है, and why he gives all the shastric pramanic reasons why we should not have this war, ठीक है? So फर्स्ट चैप्टर में कृष्ण नहीं बोलते हैं, एक बार भी नहीं बोलते हैं. वो सेकंड चैप्टर में बोलेंगे सीधे. एक चैप्टर अर्जुन तुमको दिया, तुम बोलो. ठीक है, 100 सुनार की 1 लोहार की, ऐसा बोलते हैं ना. तो कृष्णा will just put a full stop later of his hue and cry. ठीक है, तो section 1 was again divided into 3 subsections. I hope you've noted it down, right? You can revise it. So 1.1 to 1.11 it was preparation of war. ठीक है, preparation of war were described in 1.1 to 1.11. Then 12 to 20 describes signs of victory of the Pandavas. How it is clearly known that Pandavas will be victorious in this Kurukshetra war. Already known, है ना? These are the signs. Okay, and third is again which we are in 1.21 to 27, which is Krishna as Bhakta Vatsal. Okay, and primarily this is coming Krishna as Bhakta Vatsal because 1.21 is the verse where Arjuna requests Krishna that please draw my chariot in the midst of the 2 armies, है ना? तो वहां पे अच्युत वर्ड से चालू हुआ है वो, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयम मैं अच्युत, है ना? And we have done a lot of discussion about what is Krishna's position, what is Jiva's position, how Krishna is infallible, Achyuta, and we Jivas are Chuta. We are fallible. We are always we have fallen down, है ना? And whatever Krishna does, Krishna never comes under any authority, or he does not come under anybody's jurisdiction or any power, right? Krishna remains Supreme Personality of Godhead. And but then why is he drawing the chariot? Why is he driving a chariot? That is his Vatsal quality, है ना? Being President of India, I still bend down on my 2 knees and 2 palms, and I carry my grandson on my back, right? So President of India, his position does not get diminished by becoming a horse, है ना? बच्चे के लिए, अपने पोते के लिए, नाती के लिए घोड़ा बनने से प्रेसिडेंसी खत्म नहीं हो जाएगी उसकी, या फिर ये नहीं हो सकता है ये तो कोई चलता फिरता व्यक्ति है. नहीं, he is doing that. Why?
out of love, out of unconditional love for his loved ones. है ना? So similarly, Krishna does that. When we practice devotional service, when we prioritize Krishna in our life, when we make every decision centered around Krishna, right? Then Krishna reciprocates to us in that loving relation. Without love, Krishna will not reciprocate. Everybody else will reciprocate with business dealings. In this world, we approach to somebody, आप ये ले लो और मेरा ये मुझे ये दे दो, या फिर मुझे चाहिए कि मेरा ये काम कर दो. Right? We purchase either goods or services. That's what we do in this world, right? The two things only we purchase: goods or services. And by what do we purchase this? By either goods or services. है ना? तो यही exchange है इस संसार में, and this exchange goes on up till demigods. देवलोक तक भी वही चलता है. Because demigods, you are giving rains, so I offer this to you. Because you are offering, like you are removing my problems in life, विघ्नहर्ता, right? संकट मोचन हनुमान जी हमारे उधर बहुत फेमस है. ऐसे राजस्थान में हनुमान जी इन्होंने संकट मोचक, है ना? वो ना सुंदरकांड में आता है ना, संकट मोचन नाम तिहारो, वो बहुत पढ़ते हैं घर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा. Why? So please remove our miseries, please remove our problems. हनुमान जी तक पहुंचे, परम भक्त हैं हनुमान जी, उनके पास में पहुंच गए, परंतु पहुंच के किया क्या? वापस उधर बिजनेस कर, एक्सचेंज कर रहे हैं. हमने सवामणि कर दी, है ना? सवामन का बहुत कॉन्सेप्ट करता है. सवामन, यू नो व्हाट इज सवामन? सवामणि, हाँ, सवामणि मतलब एक मन, मतलब इट्स लाइक हाउ मेनी किलोस? 40 kgs इज 1 मन, ऐसा बोलते हैं. मन इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट, ठीक है ना? तो 40 kg इज इक्वल टू एक मन. और सवा मन प्रसाद बांटेंगे भगवान को, बालाजी को भोग लगा के. बालाजी बोलते हो हनुमान जी. तो सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, they are famous temples, and always crowded, and people come from very remote places also. So they would do सवामणि. हमारे बेटे की शादी हो जाएगी तो सवामणि करेंगे. क्योंकि बेटा इतना नालायक है, शादी हो नहीं रही है. है ना? जॉब लग जाएगी, so on. So this exchange, either goods or services, right? Many people will do these activities of धर्मार्थ. धर्मशाला बनाएंगे. पहले प्याऊ का कॉन्सेप्ट होता था. आते जाते रास्ते में प्याऊ होती थी, प्याऊ, है ना? तो सबको पता होगा. मैंने इधर आने के बाद में देहू जब गए थे हम तीर्थ यात्रा के लिए, वहां पे देखे. अभी वहां पे भी ऑटोमेटिक टैप लगा दिए हैं, तो बूढ़ी माता जी नहीं है पानी पिलाने के लिए मटकों से. पर एक बार पहले हम गए थे बहुत साल पहले, तो मटके भी थे. तो ये क्या होता था? नाउ वी आर ऑफरिंग सर्विसेज, है ना? तो वी ऑफर सम सर्विसेज. नाउ डेमिगॉड्स, यू प्लीज फुलफिल आवर डिजायर्स. यू ईदर गिव अस गुड्स और अदर सर्विसेज, ठीक है ना? सो everybody else in this world, when we say, we mean 14 planetary system, right? 6 swargalokas and नीचे 7 nargalokas and prithvi in between, है ना? The transaction happens everywhere except Krishna. Krishna is out of this Brahmand jurisdiction, right? When we approach to Krishna, Krishna will give what is right for us. He will not give what is wrong for us, which we can misuse. That he will not give, you know, because Krishna has a loving relationship with us as Supreme Father, right? So still now Krishna is driving the chariot of Arjuna because he is bound by love of his devotees, है ना? इस कॉन्टेक्स्ट में हमने एक बहुत सुंदर पास टाइम की चर्चा की थी श्रीमद् भागवतम से. रिमेंबर्स one king, he was threatened to be killed. Amrish Maharaj, right? So Amrish Maharaj, pure devotee of the Lord,
right? His leelas are described in Srimad Bhagavatam. And what happened? Durvasa Muni became angry on him for some reason. He cursed him. वो राक्षस को पैदा किया, राक्षस मारने आया, तो क्या हुआ? राक्षस मारने आया अम्बरीश महाराज को. What happened next? Who remembers? Except Sheetal Gyanjani Mataji. She remembers everything. हाँ, Sudarshan Chakra came to kill Ambrish Maharaj, right? To kill the Rakshasa, because the Rakshasa was threatening Ambrish Maharaj, है ना? फिर क्या हुआ? हाँ, Brahma ji, sorry, Durvasa Muni started running, and then when the yogis run, they don't run like us. When we run, what do? हमारे पीछे कुत्ता उड़ जाता है, कुत्ते से भी हम भाग नहीं सकते. But Durvasa Muni is running from Sudarshan Chakra. So where all did he run? वो भागते भागते स्वर्गलोक वगैरह सब क्रॉस करते करते सत्यलोक तक चले गए वो, है ना, कि मुझे बचाओ. तो क्या बोले ब्रह्मा जी? सुदर्शन चक्र belongs to Krishna, है ना, Vishnu. So this is beyond my jurisdiction, you know. So you approach somebody else who is higher than me. हम बोलते हैं ना, जो प्रॉब्लम आती है तो ये तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे सीनियर के पास जाओ. है ना. तो एक बार चौपाटी मंदिर में एकादशी प्रसाद कुकिंग हो रहा था. एकादशी था, सबका फास्टिंग था. तो कुकिंग करते करते अभी this new cook has come, he is recently joined, and he started chanting etc. And he joins in the kitchen में उनको सेवा मिली, कुकिंग चल रही थी, आलू और ये सब क्या सब्जियां वगैरह कुकिंग हो रहा था. एंड nobody is there in the kitchen and he is thinking कि ये सब्जी ना थोड़ा रिच नहीं लग रहा है, इसको कुछ तो रिच बनाना चाहिए, है ना. तो उसने देखा क्या करें, अभी कुकिंग तो ऑलरेडी हो रहा है, तो कुछ इसमें डाल सकते हैं क्या. उन्होंने फ्रिज खोला, देखा और फ्रोजन पीस, फ्रोजन ग्रीन पीस दिखे फ्रिज में. हाँ ये अच्छा है, ग्रीन पीस डाल देते हैं, है ना. तो उन्होंने उठाया ग्रीन पीस के पैकेट्स वो सब्जी में डाल दिए और कुकिंग चालू हुआ. बाद में जब हेड कुक आए बलभद्रानंद प्रभु जैसे हेड कुक और दूसरे, वो देखे सब्जी में मटर, and he asking, who have put the green peas in the curry? बोले कि प्रभु जी, अरे आज एकादशी है, तो प्रभु ये तो सब्जी होती है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे सब्जी ये ग्रे एरिया है, एक्सेप्शन है, ग्रीन पीस नहीं खा सकते एकादशी में. दिस इज कंसिडर्ड ग्रेन आल्सो. In our starting days of bhakti, we also used to put green pea. We did not know, है ना. एकादशी करना है तो सब्जी तो कोई भी खा सकते हैं, तो हम सब्जी में मटर डाल देते. बाद में पता चला, काउंसलर ने बोला, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, है ना. माय काउंसलर वाज इन माय ऑफिस, वेरिटास, वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर. तो हम साथ में लंच लेते थे. तो एकादशी पे टिफिन खुला और देखा मटर एंड वी आर ऑफरिंग, प्लीज हैव, एंड ही इज लुकिंग एट मी. He did not say anything at that time. He did not take also. But later he said, "Prabhu, we don't use green peas." हाँ, तो इन्होंने डाल दिया. अब बाद में प्रसाद लेने का टाइम हो गया, 12 बज चुके हैं, प्लेटें लेके ब्रह्मचारी आर इन द क्यू, कुकिंग अभी हो भी गया, अभी दोबारा कुकिंग नहीं हो सकता कुछ भी करके. तो मैटर रीच टू राधानाथ स्वामी महाराज. क्या करें, सीनियर्स को पूछा, अरे प्रभु क्या करें, करते करते हायरार्की में एस्केलेशन मैट्रिक्स, महाराज के पास में गए सब लोग. महाराज व्हाट डू वी डू, ऐसे सिचुएशन हो गया और नए डिवोटी ने मटर डाल दिया सब्जी में. तो महाराज से, आई डोंट नो, यू आस्क सम सीनियर, यू आस्क सम सीनियर, आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. महाराज का ड्यूटी वाज sharing this past time was hilarious, and then Maharaj also started laughing. What do we do? I can't solve this problem. बाद में कमिटी बुलाई गई और फिर डिसीजन लिया गया आनंद फानंद में, 5-10 मिनट में, क्राइसिस है, कैसे सॉल्व करें इसको. Then they said, अभी कुछ नहीं कर सकते,
सब्जी को परोस दो, है ना, एंड आज डिवोटीज कि वो पीस को उसमें से चुन चुन के निकाल दें और जिसको खाना है खा लें, जिसको नहीं खाना है मत खाए, वी कांट सॉल्व दिस। तो वो सब्जी वैसे ही परोसी गई है फिर जैसे भी हुआ वो, तो ये लीला हुई थी चौपाटी मंदिर में, मैंने 2 decades ago सो ब्रह्मा जी के पास में गए अम्बरीश महाराज, सॉरी दुर्वासा मुनि, तो इसे चेक विद सम सीनियर, so now दुर्वासा मुनि is running to हाँ भोले बाबा, कृष्ण प्रभु की लैंग्वेज में भोलेनाथ, what did शिव जी से, what did शिव जी से, आउट ऑफ माय जुरिडिक्शन, सुदर्शन चक्र मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, यू आस्क माय सीनियर, है ना, and who is the senior, Lord Vishnu in the Kshir Sagar. Then Durvasa Muni approached, so this all happens in this same ब्रह्मांड, right? ये ब्रह्मांड के बाहर कोई नहीं जाता है, ये ब्रह्मांड के अंदर ही होता है। Within this ब्रह्मांड सत्यलोका, that is ब्रह्मलोका, ब्रह्मलोका is actually the place where Lord Brahma resides, and also Kshirodakshai Vishnu, this place is also there, है ना, वो सब भी ब्रह्मलोक में आता है, and कैलाश also, ऐसा समझते, right? कैलाश मतलब Lord Shiva's abode, है ना, so they reside in the topmost planet which is सत्यलोका। तो फिर उधर गए क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीर सागर में he is sleeping on the Sheshnag Shayya and Lakshmi ji is massaging his feet there. What does Lord Vishnu say? He says aham bhakt paradhino. See this shloka in Bhagavatam. Let me see if I have this one. Reading this the other day. This is if you want to note down in front of your Bhagavad Gita verse 9:463, 9th canto, 4th chapter, 63rd verse. So let's recite it together. Shri, not together, follow me. Shri Bhagavan Uvacha Aham Bhakt Paradhino Hi Aswatantra Iva Dvija Hi Aswatantra Iva Dvija Sadur Bhirgrast Hridayo Bhakter Bhakt Jana Priyaha. I'll read the translation by Srila Prabhupada ki. The Supreme Personality of Godhead said to the Brahmana, I am completely under the control of my devotees. Indeed, I am not at all independent. Because my devotees are completely devoid of material desires, I sit only within the cores of their hearts. But to speak of my devotee, even those who are devotees of my devotee are very dear to me. So I am completely under the control of my devotees. Indeed, I am not at all independent. Now, you see, one of the names of Krishna is Swarat. Swarat means completely independent. Krishna doesn't care for anything, anyone. Right? He is completely independent. He does whatever he desires. And that becomes a leela. उनको माखन चुराना है, माखन चुराएंगे, वस्त्र चुराना है, वस्त्र चुराएंगे, राक्षस का वध करना है, वो वध करेंगे, जिसके ऊपर कंपैशन दिखाना है दिखाएंगे, जिसके ऊपर नहीं दिखाना उधर नहीं दिखाएंगे, है ना? स्वराट completely independent. We can't predict what Krishna will do in this situation. He accepts the banana peels from the hands of Vidurani and he's eating, केले के छिलके खा रहे हैं वो, और विदुर जी को बोल रहे हैं कुछ बोलना मत बीच में। विष्णु प्रभु ने बताया ना फर्स्ट टाइम, ना कुछ बोलो मत बीच में, केले के छिलकों में बहुत आस्वादन है ना? Completely independent. And he is saying now here that I am not at all independent. कैसा है ना, विरोधाभास है ना? भगवान स्वयं इंडिपेंडेंट है, परंतु वो बोलते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। Because my devotees are completely devoid of material desires. मेरे भक्तों को भौतिक दुनिया संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, भौतिक इच्छाएं नहीं है, सिर्फ आध्यात्मिक इच्छा है।
है ना। तो क्योंकि उनमें आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छा नहीं है, उनके हृदय में मैं निवास करता हूं। लेकिन हृदय में तो सबके निवास कर रहे हैं परमात्मा, है ना। So what is the difference here? Paramatma is residing in everyone's heart, those who have material desires also. But he is saying that those who do not have material desires, I sit only within the course of their hearts. How do you understand this? कितना कॉन्ट्रडिक्शन है ना। इंडिपेंडेंट है पर इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं। सबके हृदय में रहते हैं परंतु बोल रहे हैं मैं सिर्फ भक्तों के हृदय में रहता हूँ। हाउ डू वी सेटल दिस कॉन्ट्रडिक्शन? यस जी। अपने तो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे देता है उनके साथ, लेकिन वो अपने उसमें लगे उनकी इच्छा है कि हम सिर्फ भगवान की सेवा करें, तो जो भक्त चाहेंगे वो नहीं। But as Paramatma, Krishna sanctions what a karmi also wants to do. He wants to kill. Krishna sanctions. That's why he can kill. Otherwise, how can he kill? Krishna sanctions that bad things. Somebody is doing bad things in the world. Paramatma is sanctioning. Without Paramatma sanction, कुछ हो नहीं सकता है शरीर का। कोई no action can be taken by this body unless there is a sanction of Paramatma. Desire of the soul, sanction of the Paramatma. Two things meet, then action happens. I want to lift my hand. हाँ, correct. हाँ, but Krishna is there in everybody's heart, ना? हाँ, ज्यादा प्रिय है, बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन इधर है। He is saying I reside in the devotee's heart because they do not have any material desires. That means I do not reside in the people, in the heart of the people who have material desires. ऐसा ही है ना इसका मीनिंग। फिर विशाल Prabhu is giving a very crooked smile to me. जिस तरह से आत्मा और परमात्मा दो वर्ड थे, तो भगवान देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये पूछती कि जो कर्मी है, जो मतलब डिवोटी नहीं है, तो भगवान तो देख ही नहीं रहा ना। भगवान क्या चाहते हैं, क्या, तो इसलिए उनको वो एहसास ही नहीं है कि परमात्मा हमारे है, वो जाने के लिए रेडी। यस यस। सो परमात्मा इज म्यूट। Paramatma feature is actually a mute feature, that in a way, right? If I have material desires, I will not be able to hear the voice of Paramatma. I will not be able to understand what Paramatma wants from me, right? I am busy in my life, I am busy in my actions and reactions. I do not even realize that Paramatma is there. That is one. Second is, Paramatma के level पे रेसिप्रोकेशन नहीं है जीव के साथ में। There is no reciprocation. As an entity, he is there. As a duty, Paramatma has taken a duty on himself that I have to be with this jiva and sanction what he wants to do based on his previous karma baggage. Based on that karma calculation, I will sanction or I will not sanction. That dutifully Paramatma is there. But Krishna is not doing that as a duty or as a to settle the karmas of anyone. When Krishna says I reside in everybody, in devotees' hearts, that means I reciprocate with those devotees and I give them more and more ways and reasons so that the devotees can come to me. The devotees can get attracted to me more and more. I will make sure that those things, those experiences happen in the devotees' lives. Because devotees is anyway not looking for anything else but me. So the loving reciprocation happens at the level of Bhagwan feature. So Bhagwan in one sense, right? What are three features of absolute truth? परम सत्य। परम सत्य तीन तरह से जाना जा सकता है। हाँ हाँ, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। What is Brahman? Yes,
ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति मतलब क्या है? हाँ, बट उसका सोर्स क्या है, कहाँ से, किसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति? टेक्निकली क्या है, कैसे समझो ब्रह्म ज्योति को? ये ब्रह्म ज्योति है क्या जो मुझे दिख रहा है अभी? ये लाइट, इससे एलईडी से लाइट आ रहा है ना? दिस इज ज्योति. Similarly, light emanates, effulgence emanates from Krishna's body, right? That is called Brahma Jyoti, because Krishna is Parabrahma, है ना? Okay, so that is Brahma Jyoti. So some people will understand God only in the form of Brahma Jyoti. ये एनर्जी है, कहते हैं ना लोग, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है? ऊर्जा है, प्रकाश है, निराकार है ना? इसका मतलब क्या है? ये इसको ही समझ रहे हैं ऐसे, है ना? फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट वी हैव टू पे टैक्सेस, व्हेन वी अर्न मनी वी हैव टू पे टैक्सेस, है ना? बट व्हाई, मतलब इज देयर अ सिस्टम व्हिच इज टेकिंग केयर ऑफ दिस टू एंश्योर दैट वी आर पेइंग टैक्सेस? देयर इज अ सिस्टम टू एंश्योर दैट वी डोंट ब्रेक लॉज, है ना? पर वो सिस्टम किधर है? वो दिख रहा है क्या हमको? नहीं दिख रहा, है ना? उसको कहते हैं गवर्नेंस. There is a government which is a body, and the government has governance, है ना? The governance itself is invisible, निराकार, है ना? निर्गुण. गवर्नेंस के बारे में बोल सकते हैं ना, सरकार. तो सरकार एक्चुअली दोनों में यूज होता है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में. बट यू गॉट द पॉइंट, राइट? जैसे मोदी का ये स्टेटमेंट है ना, फेमस स्टेटमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ऐसा बीजेपी का ये है. एनीवे, आई एम नॉट सरकार. वाह, क्या बात है. ठीक है. सो बाय इटसेल्फ एंड इन द कंपनी there are rules which are made by the CEOs, by the board, right? Now where are those rules? Can we see those rules? कि देखो ये रूल हमको देख रहा है तो हमको ऐसा करना चाहिए. नहीं, this is invisible, है ना? So वैसे ही ब्रह्मन को समझते हैं, and there are some spiritualists who will only reach to the platform of ब्रह्मन, कि हाँ यही है हाईएस्ट, इसके ऊपर कुछ नहीं. ठीक है ना? But a higher understanding is परमात्मा अंडरस्टैंडिंग, कि परमात्मा is there in everybody's heart and he has a form. ठीक है? परमात्मा के लेवल पे जो आया उसको समझ में आ गया कि हाँ भगवान का रूप होता है, और परमात्मा ऐसे दिखते हैं, 2 हाथ ऊपर 2 हाथ नीचे, है ना? One I think Yamuna Mataji once asked, no, not Yamuna Mataji, one Mataji who used to make paintings, है ना? अपने श्रीमद् भागवतम भगवद गीता में जो पेंटिंग्स हैं, तो very few devotees have made them Prabhupada disciples in 70s. So one this Mataji asked Prabhupada, how is Paramatma in the heart? Is he sitting or standing? इतना टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछते हैं. And Prabhupada waits for a few seconds, closes his eyes, and then he replies, he is standing. Paramatma is standing. Paramatma always keeps standing. He never sits. ठीक है? ईशोपनिषद का बुक यदि आपने देखा होगा, those who are doing भक्ति शास्त्री, you know, ईशोपनिषद बुक you have, उसमें जो फोटो है उसके बाद में वो माता जी ने वो फोटो बनाया था, वो पेंटिंग बनाया था, परमात्मा स्टैंडिंग, है ना? So such clarity in the scriptures with the mercy of Prabhupada, amazing, right? So that Paramatma, Prabhupada says, he keeps standing here in the region of the heart. Why is he standing? He is always waiting for the next instruction from the jiva. अभी क्या करना है तुझको बोल. I will fulfill that desire. I will sanction that desire. Correct? So Paramatma. And then higher understanding than Paramatma is भगवान. परमात्मा तक रूप समझ में आया है कि हाँ जो परम सत्य है उनका एक रूप है और उनका एक जुरिस्डिक्शन है ना? परंतु
तो परम सत्य को खाने में क्या अच्छा लगता है? उनका भाई बहन, पति पत्नी, ये माता पिता, ये सब संबंध, ये कौन है, रहते किधर है? That understanding is Bhagavan understanding. That's where the spiritualist reaches to the understanding of Krishna. Understood? कृष्ण के लेवल पे आएंगे तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इसलिए श्रीमद् भागवतम में, when we get into श्रीमद् भागवतम, लीलाएं हमको समझ में आती हैं, भगवान कैसे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अभी जैसे बीसीसी में डेली भागवतम में दूसरा स्कंद शुरू हो गया भागवतम का, है ना, तो यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में चर्चा हो रही है, धीरे धीरे क्रिएशन के बारे में बताया जाएगा। ये सब अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आता है? भगवान का अंडरस्टैंडिंग। ये भगवान ये सब करते हैं, उनकी क्रियाएं क्या है। परमात्मा के लेवल तक क्रियाएं नहीं है। सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड जो भी ये हैं, परम सत्य जो है वो क्रियाएं नहीं है, बस ही कीप स्टैंडिंग विद 2 हैंड 4 हैंड लाइक दिस, इतना ही है परमात्मा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यदि इसको उदाहरण से समझना हो, यस मां, भगवान को समझना और भगवान को समझकर उनकी सेवा करना वो सबसे ऊपर है। हाँ, so I was coming to this point that there is no seva involved at the level of Brahman and Paramatma. भगवान की निजी सेवा है ही नहीं, क्योंकि भगवान को निजी स्तर पर जाना ही नहीं है। हम भगवान की सेवा में क्या करते हैं? उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनके भक्तों की सेवा करते हैं, उनके भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं, यही है ना। परमात्मा के लेवल पे रिलेशंस नहीं है, लाइकिंग डिसलाइकिंग्स नहीं है, राइट? तो व्हाट डू यू डू? Hence, these Paramatmavadis, these Brahmavadis, what do? They practice spirituality, and once again, because there is no exchange, there is no love. So the swarup of Jiva, or the properties of the Jiva, the soul, is what? Sat, Chit, Anand. ये तीनों चाहिए ना, तीनों का एक्सपीरियंस चाहिए आत्मा के स्तर पे। ब्रह्मन के स्तर पे सिर्फ सत्य का आभास होता है, सिर्फ सत्य का एक्सपीरियंस होता है। सत्य फीचर, सत्य फीचर मतलब क्या? व्हाट इज सत्य? परमानेंट, ऑफ बीइंग परमानेंट। आत्मा के स्तर पे ये जीव समझ जाता है और ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन हो जाता है। इसका मतलब क्या है? वो प्रकाश है, तो प्रकाश में जाकर, जैसे कभी कभी दिखाते हैं बादलों में कोई सोर गया है, फेरी टेल्स में हम दिखाते हैं, वैसे वो उस प्रकाश में जाकर और जीव जो है वो सो जाता है, फिर उठता है, फिर सो जाता है, कुछ करने को ही नहीं है उधर, है ना। तो उसको लगता है मजा नहीं आ रहा। इतना अध्यात्म प्रैक्टिस किया, इतनी आध्यात्मिक प्रगति की, कितने जीवन लगा दिए आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, योग में, साधना में, उसके बाद में ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन मतलब अस्तित्व तो नहीं होता आत्मा का, आत्मा तो हमेशा रहेगी। न तो हम जातु नासम, है ना, सोल नेवर डाइज, सोल नेवर loses its identity. So this jiva remains there in the Brahma Jyoti. He keeps on floating, he keeps on flying here and there, he meets other jivas, but वो सब के सब ऐसे ही उदासीन लोग ही आए हैं उधर। योगी मतलब क्या? अकेला जो आध्यात्मिक प्रगति करता है वो योगी, है ना। मतलब अष्टांग योगी, ज्ञान योगी, ये अकेले अकेले रहने वाले लोग हैं, इनको किसी से संबंध नहीं। नागा बाबा वो उधर हिमालय में कुंभ मेला में मिलेंगे। We are planning a Kumbh Mahakumbh Yatra in 2025. Mahakumbh will happen in Prayagraj. So we are discussing with Canada Guru ji, because वो 12 साल में एक बार होगा महाकुंभ, और अभी बहुत अच्छी फैसिलिटीज बना दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा उधर। So we are exploring this, that whether we can attend the Kumbh Mahakumbh Yatra. नासिक में भी होगा, वो नहीं, वो सब 12 साल में प्रयाग, तो सबका अलग अलग शेड्यूल है। तो वी आर प्लानिंग फॉर दैट 2025, ठीक है। एनीवे, तो वो अकेला रहता है योगी, तो वो ब्रह्म ज्योति में ऐसे अकेले रहने वाले योगी पड़े रहते हैं, है ना। उनको समझ में आ जाता है हम परमानेंट हैं, हमारा अभी अस्तित्व हम परमानेंट है, लेकिन चित्त नहीं है, आनंद नहीं है, तो मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा तो क्या होगा? फिर डिजायर है, कुछ तो करना चाहिए, नो एक्शन देयर, कुछ तो करना चाहिए। तो क्या होता है फिर? तो वापस दे फॉल डाउन टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड वंस अगेन दे हैव द बर्थ, वंस अगेन दे हैव टू एंगेज इन द एक्शंस एंड द रिएक्शंस, एंड वंस अगेन दे हैव टू परफेक्ट देमसेल्व्स स्पिरिचुअली। ठीक है, ये होता है इसके साथ में, ब्रह्मवादी के साथ।
ठीक है। परमात्मावादी कौन होते हैं? परमात्मावादी गोज टू द लेवल ऑफ सत एंड चित। परमानेंस फीचर समझ में आ गया, ज्ञान भी आ गया, चित मतलब नॉलेज, राइट, पूरा ज्ञान आ गया, परंतु वंस अगेन दे आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज। नॉलेज बहुत हो गया, हाँ ईश्वर ऐसे होता है, सृष्टि उत्पन्न ऐसे होती है, ये इतने सारे ब्रह्मांड हैं, दे कैन एक्चुअली गो हियर एंड देयर अक्रॉस सो मेनी ब्रह्मांडास, दे कैन गो, है ना, क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो है ना वो ब्रह्मांड के बाहर है, ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म ज्योति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी देयर इज लाइट इन दिस रूम, बट इस रूम के अंदर एक फुटबॉल अगर रखा है, फुटबॉल के अंदर ये लाइट नहीं है, डार्कनेस है ना। Similarly, this Brahmand is dark. Brahma Jyoti is not coming inside. ठीक है? In the dark Brahmand, now light is required for the living entities to subsist. So sun and moon is arranged by Krishna. Got it? तो परमात्मावादी लेवल पे भी ज्ञान पूरा हो गया, वो अलग अलग ब्रह्मांडों में विचरण भी कर सकते हैं, ब्रह्मा किधर भी जा सकते हैं, वो ब्रह्मा जी को देख सकते हैं, शिव जी को जा सकते हैं, परंतु ये परम सत्य कहाँ है, कहाँ रहता है, वहां तक जाने का योग्यता हुई नहीं है। क्योंकि गोलोक वृंदावन में आप कैसे जा सकते हो? सिर्फ सेवा करके जा सकते हो, क्योंकि जाके उधर तो सेवा ही करना है ना। तो क्या होता है फिर? देन दिस जीवा आल्सो फॉल्स डाउन टू द मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज इज लुकिंग फॉर आनंद ना, आनंद नहीं मिल रहा। सोल कैन नॉट लिव आनंदमय अभ्यासात, सोल कैन नॉट लिव विदाउट आनंद, राइट? सो देन they once again come, and these examples we see in the different up sampradayas. For example, sannyasis, people wearing sannyas robes, and they will treat doctors, you know, they become doctors, they treat patients कि नहीं मानव सेवा ही माधव सेवा है ना, किसी का दुख दूर करेंगे, कुछ एनजीओस बनाएंगे, कोई चीफ मिनिस्टर भी बन जाएगा है ना। क्यों? क्योंकि जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें आनंद नहीं था। तो ये सब फिर इस भौतिक संसार में वो कहते हैं, you know, there is a slogan which they use, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, है ना। ब्रह्म सत्य है, only the supreme truth, absolute truth is the only thing which we should follow. Jagat mithya, this world is false, and then in the false world they are doing this seva, they are serving, then they are feeding people, अन्नदान करेंगे, श्रमदान करेंगे, किधर किधर एनजीओस में जाके पेड़ लगाने चले जाएंगे, इस संसार को सुंदर कैसे बनाएं, इधर के जीवों का दुख कैसे दूर करें, उसमें लगे। But person who understands this Bhagavan feature of absolute truth, he gets Sat, he experiences Chit, and he also experiences Ananda in the loving reciprocation of Lord and his devotees. And that is why a devotee of the Lord does not come down to the levels of Brahmavadi or Paramatma. Brahmavadi and Paramatmavadi can become a devotee. There are examples. Shukadeva Goswami is an example. First canto के end में वो सब description है श्रीमद् भागवतम। How Shukadeva Goswami became a devotee from a ज्ञानी, है ना। चतुष कुमारा का example आता है श्रीमद् भागवतम। But we don't find any example of a devotee becoming a Brahmavadi or a Paramatma, right? Because the devotee is experiencing such bliss in reciprocation with Krishna. Those experiences, right? Any seva we do, we derive so much reciprocation, so much energy. अरे ऐसे कैसे हुआ? भगवान ने कितनी कृपा की है, इसके भगवान के इंटरवेंशन के बिना ये नहीं हो सकता। हमको रियलाइजेशन आ जाता है किसी भी सेवा में घुसते ही, कोई भी सेवा करेंगे ये रियलाइजेशन आ जाएगा, है ना। And then the devotee starts feeling the company of Krishna. Krishna is there with me. Krishna is directing my life. He is helping me in this decision. He is helping me in this situation. Right? That is why Krishna says that I live in the hearts of those devotees. Because I direct their lives completely. They give up their life to me. Prabhupada did it.
You know what does Prabhupada say on the ship, cargo ship में जब जा रहे थे, हाँ, नाचाओ नाचाओ आमी, my dear Lord Krishna, I am useless. And Prabhupada wrote a poem. You know, if you have not read the poem, please read it. लीलामृत में फर्स्ट वॉल्यूम में ही आता है वो. उसका टाइटल है मार्किने धर्म, बंगाली, है ना. He's praying that Krishna, I am an old person. I don't know what I can do. Even what I speak, people may not understand. है ना, क्योंकि you know, this heavy Bengali accent person going to America. Honestly, those who are in corporates, right? In the initial initial phase of career, हमको वो फॉरेनर्स के साथ में कॉल्स में डिस्कशन करने में बहुत प्रॉब्लम आता है. कभी-कभी अभी भी आता है. Some people have such heavy accent, US accent, UK accent, अंग्रेज लोग बात करते हैं उनको समझ में नहीं आता. उनको अच्छा, are you saying this? Do you mean this? ऐसा बार-बार पूछना पड़ता है कॉल्स, है ना. And Prabhupada is going daringly, old fellow, 65-year-old, है ना. And Prabhupada का टेप अभी भी हम सुनते हैं तो हमको भी समझ नहीं आता वो इंग्लिश कभी-कभी, इतना एक्सेंट ऐसा रहता है Prabhupada. So he is praying that now you see, I am taking this journey. Now you make me dance the way you want. I don't know what is happening, what is going to happen. ठीक है, consider me a doll in your hand. That is a devotee. In the second chapter, when we reach, Arjuna is going to say that same thing. Krishna, now I surrender it to you. I don't know what is good, what is bad. My mind is not working. Right? Now you take the decision, and whatever you say, I will do. Karishye vachanam tav. At the end of Bhagavad Gita, he says. Right? This is so many devotees. Right? Again, coming back to Ambrish Maharaj. And then Krishna is saying, Aham bhakta paradhino. I reside in the hearts of those devotees. So what should you do, Durvasa Muni? Because so my Sudarshan Chakra is also paradhin, है ना. तो वो डिवोटी जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे. हमको तो आगे कुछ आता है, है ना. Then Durvasa Muni goes back to Ambrish Maharaj, and then he begs forgiveness. And Ambrish Maharaj is such a humble devotee. He says, you know, he is begging forgiveness from Durvasa Muni. No, you are a sadhu, you are a brahmana. How can you? I am a kshatriya. No, I am a sinful person. I am an offender. It's the right thing that you are punishing me. I am worthy of this punishment only. है ना. And then Durvasa Muni says कि नहीं, सुदर्शन चक्र को कुछ बोलो, मुझे मत बोलो. हाँ. And then with folded palms, Ambrish Maharaj prays to Sudarshan, and Sudarshan goes away. Right? So Bhakta Vatsal Krishna. Okay. Now coming back to the discussion. 24 में we were there. गुड़ाकेशेन भारत. गुड़ाकेश के बारे में हमने बहुत लंबी चर्चा की थी. Anything you remember? 1 line, 2 lines. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. गुड़ाकेश अर्जुन को क्यों बोलते हैं? वो तो पास्ट टाइम है ही, जो हमने डिस्कस किया था. बट हाउ डज इट अप्लाई टू अस? भूल गए सब कुछ. हाँ, दैट इज अ पास्ट टाइम. व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन आवर लाइव्स? गुड़ाकेश. गुड़ाकेश का मीनिंग क्या है? Conquering sleep. Sleep resembles, or sleep is a symbol of which guna? Tamasic, tamo guna, right? Ignorance. So that means Gudakesh also means winning over ignorance. तमो गुण, हमारी तमोगुणी प्रवृत्तियों के ऊपर विजय पाना. Right? And again connecting it back to the sleep, a devotee may not be sleeping too much. But sleep means, जैसे मुकेश वो बोलते थे, आलस, right? Laziness. Laziness में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस वर्ड को, winning over laziness. इसका क्या मीनिंग है? How do we know? At the level of a devotee, laziness पे विजय पाओ का क्या मतलब है? Always enthusiastic, serving God, whatever time.
टाइम पूरा हो तो डिवोटी उठ जाएगा और जाएगा। हम्म, भगवान की सेवा ज्यादा की है, ये सब इसके लिए मैटर ही okay, so that is a statement, but practically how do we do it? फिर भी practical example और जब ये तो उनके चैंटिंग करना है वो लेजीनेस हाँ जो आता है हाँ ब्रह्ममुहूर्त ओके, सुबह चैंटिंग करना चाहिए, स्लीप को छोड़कर। वो तो आपने फिर भी नींद को ही पकड़ा है। नींद को छोड़कर या रेगुलेट करके नींद को, टाइम टू टाइम नींद को मैनेज करके हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहिए, सुबह का साधना करना चाहिए इन द फ्यूचर। लेजीनेस पे आइए, नींद को छोड़िए फॉर सम टाइम, वो तो क्लियर है। सुबह उठ के मंदिर जाना चाहिए, जप करना चाहिए। प्रॉपर ड्रेसिंग के लिए गए आज विशाल प्रभु, डीटी ड्रेसिंग था शिवलदेव प्रभु का आज, ड्रेसिंग है ना। लेजीनेस को कैसे, उसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, दिस इज अगेन अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। गिव मी अ प्रैक्टिकल एक्शन दैट दिस मींस लिविंग लेजीनेस। यस विशाल प्रभु। हाँ 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 ओके यस, which we face. Okay, we face it every day. तो ये क्लासेस का भी हम बोल सकते हैं, जो मॉर्निंग क्लासेस होते हैं तो वो भी कभी-कभी हम सोचते हैं ऑनलाइन सुन लेंगे हाँ। उससे ज्यादा सोचते हैं हाँ ओके, मॉर्निंग क्लासेस, पर मॉर्निंग में होता है क्या लेजीनेस? कि कौन सा भी क्लास हो हाँ, weekly class is there, evening class is there, festival class is there. There is a laziness in the mind, body में नहीं है। लेजीनेस किधर है? माइंड में। ये वाला लेजीनेस स्पेसिफिकली, ये अरे अभी कुकिंग हो गया है और मेरे और प्लेट के बीच में थोड़ा सा ही फासला है ना, कि कृष्ण क्यों आ रहे बीच में, है ना। एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? एक दिन, अच्छा भगवान को 2 टाइम का भोग तो हमने लगा दिया, अभी कुछ तो अलग बनाया है, बच्चे के लिए बनाया है, गेस्ट के लिए बनाया है ना। भगवान को तो भोग लग गया, भगवान तो भूखे नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? अभी ये चला देते हैं उसको ऐसे ही। व्हाट इज दैट? लेजीनेस। Only 10 minutes more have to be spent, and there is an opportunity that we honor prasad, and somebody else will also honor prasad, maybe a guest or maybe kids. लेकिन वो लेजीनेस, माइंड का लेजीनेस है वो। ऐसा तो नहीं हम सो रहे हैं, हम दिन में उठे ही हुए हैं और सब कर ही रहे हैं काम, राइट? ऐसा एग्जाम्पल दो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर अस एट आवर लेवल। यस प्रथमेश प्रभु। हाँ, बीसी से टेंपल स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ वो ऐसे ही चलते रहा। हाँ बड़े लोग क्या कुछ ना कुछ नया सुनने को लेक्चर का क्लास कोई मैं हाँ और एक कोई पहले तो माइंड में चल रहा था कि मतलब हो रहा था। हाँ एक रियल एक्सपीरियंस मुझे लगा कि भगवान क्या करते हैं, हमारी जो इच्छा होती है नहीं जाने, हाँ तुम घर जाओ अच्छे से वहाँ पे और प्रॉब्लम। हाँ वो पूरी करते हैं तो वहाँ पे दे देते हैं, वहाँ हाँ। तो भगवान के पास कृष्णा will give full material life, he will give full। पर अगर हम सेंटर में उनको रखते हैं तो अच्छा क्या है बुरा क्या है हमको पता नहीं है, क्योंकि वो फोन करके बुलाएंगे चलो गाने की सेवा है चलो। हाँ नहीं, गुड क्वेश्चन, बट ठीक है वो क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे। तो आप बहुत होशियार हो, मुझे पता है क्लास को कैसा टाइम निकालना है, यू वेरी वेल नो नाउ। More practical, yes, very good. Prabhu was saying that yes, temple came close and he was going every day, but then घर पे गए
होम टाउन गए और उसके बाद में आने के बाद में कुछ ना कुछ रीजंस माइंड में देना शुरू कर दिया, व्हाई आई शुड नॉट गो टू द टेंपल, 10 reasons why I should not go to the temple. Right? हाँ, so yes, वो reasons हमको मिलते हैं और वो reasons में हम अच्छे से, and they are all valid reasons, invalid reasons नहीं है। एक मिनट मार दिया है, let him come. हाँ, एकादशी का भी है, हम मुझे लाभ होते हैं ना, अरे नहीं बैठ टेंपल में ना, वो माइंड वो सारे लोग आपके पूछते हैं, आपको पसंद है या नहीं, हाँ, नहीं, but what is laziness there? इसको ये बोल सकते हैं हम कि हमको पता है एकादशी करना मेरी भक्ति के लिए अच्छा है, परंतु अभी घर में पेरेंट्स के लिए तो बन ही रहा है ना, बच्चे के लिए तो बनाना ही पड़ेगा ना, अब कौन इतना अलग अलग बनाए, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, ले लो एक दिन, प्रसाद ही तो खा रहे हैं, कोई थोड़ा ना बाहर से लाके खा रहे हैं, ऑल वैलिड रीजंस, राइट? ओके, यस माता जी, सपना माता। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। जब हम होम टाउन जाते हैं, माता पिता के संपर्क में, सगे संबंधियों के संपर्क में जब आते हैं, नहीं खाली होम टाउन जाते हैं तब नहीं, वो जब इधर आते हैं तब भी ऐसा होता है। जब माता पिता या सगे संबंधी आते हैं तब भी सबसे पहले जो छूटेगा वो होगा कृष्ण का सार, है ना, इन द फॉर्म ऑफ होली नेम। लेकिन क्या है, 24 घंटों में से कुछ घंटे कम हो जाते हैं क्या हमारे, जब हम वहां जाते हैं तब क्या होता है? ज्यादा टाइम मिलता है ना वहां पे, क्योंकि काम कम हो गया है घर का, हमारे बच्चे भी किसी के साथ में खेल रहे हैं, हमको काम नहीं करना क्योंकि वहां पे सब काम अपने आप होता है ना, वहां पे सब जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, कल्चर ही है, स्कूल भेजना नहीं है, बच्चों को तैयार करना नहीं है, टिफिन बनाना नहीं है, इतना टाइम है, परंतु जब नहीं होता, साधना नहीं होती। Why? There's a laziness in the mind. अभी करता है, क्या करता है माइंड, how this laziness kicks in, क्या होता है प्रैक्टिकली, क्यों नहीं हो पाता है जब? हाँ, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर बाद ऐसे करते 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 वो जाता है रात तक, बाद में लगता है अभी 11 बज गए, 12 बज गए, 16 माला अभी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, है ना, तो 16 16 16 सो जा है ना, ये होता है, क्या फर्क पड़ता है, रोज तो मैं इतना करता ही हूँ माला, एक ही दिन कृष्णा नोस आई एम सो बिजी, इतना ही हो गया, आज बुआ आ गई, आज मामा का बेटे के साथ में जाना था, बेटी के साथ में किसी की बर्थडे पार्टी थी, कृष्णा नोज अल्टीमेटली व्हाट आई एम डूइंग, I am fulfilling my occupational duties in such a nice way that people should not question my Krishna consciousness, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ कृष्णा, now we have this valid reason that I should not present a bad example कि भक्ति में आने के बाद में ऐसे हो गए, हमारे पास में आते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, कुछ खाते ही नहीं है, हमेशा नखरे करते रहते हैं, इसलिए मैं घंटी माला नहीं पहनता, क्योंकि बैड एग्जाम्पल सेट होगा, उनको मना करना पड़ेगा, ठीक है, this is my laziness only, nobody cares, nobody minds, and there is a way to do it nicely also, so many devotees are doing it, satisfying families, satisfying relationships, and also practicing bhakti, right? But this laziness at several levels takes us away from Krishna, है ना, or in other words we can say it hinders my progress towards Krishna, ठीक है, पीछे नहीं लेके जाएगा लेकिन आगे भी नहीं बढ़ा रहा ना, at every moment, in every seva, in every day I need to see that am I progressing towards Krishna, so if I'm not doing bare minimum, जो bare minimum है हमारा, bare minimum क्या है, 4 नियम का पालन और 16 माला का, जब ये bare minimum है ना, उसको भी हम अपने स्तर पे 8 माला, 4 माला, 2 माला हमने मिनिमम बना रखा है, बात अलग है, लेकिन दैट इज नॉट इवन मिनिमम, मिनिमम इज 16 राउंड, है ना, जस्ट टू स्टे अबव द वाटर, राइट, just to stay where we are, not above the water, we are not actually above the water, we are inside the water only, लेकिन inside the water also
इफ यू डोंट डू एक्शन, क्या होगा? क्या होगा? हम नीचे जाएंगे ना, ऊपर थोड़ी जाएंगे। पानी में अपने आप कोई ऊपर आता है? नहीं आता। अपने आप क्या होता है? नीचे जाता है। और अगर हम हाथ पांव चलाएंगे, अगर मिनिमम एफर्ट करके हम कहाँ रह क्या कर सकते हैं? सिर्फ उधर ही रह सकते हैं, समुद्र में, उस लेवल पे। नीचे नहीं जाएंगे, वो ऊपर भी नहीं आ रहे। है ना? वो उधर रहने के लिए मिनिमम रूल्स बनाए हुए हैं। And on top of that, then we have Srimad Bhagavatam study circle, Bhagavad Gita study circle, Shravanam, Pathanam, Vaishnava song, we should sing, doing deity worship, offering bhoga, doing personal seva to devotees, personal seva to the Lord, so many sevas in the temple. They keep us engaged, and then our Krishna consciousness gets enhanced, enriched. Enrichment आता है सेवा से, और हमारा मिनिमम कमिटमेंट के ऊपर जो हम बढ़ते हैं उससे एनरिचमेंट आता है, राइट? देन वी स्विम अपवर्ड। हमको बाहर निकलना ना समुद्र से, तो बाहर निकलने के लिए एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, तब ऊपर आएंगे हम। मिनिमम एफर्ट में तो हम वहीं रहने वाले हैं, शायद डूबेंगे नहीं। और अगर वो भी नहीं किया तो डूब जाएंगे। इसीलिए जब घर से हम आते हैं, तुम्हारी जब छूटा, क्योंकि डूब गए हम डूब चुके हैं। अभी वो डूबे हुए लेवल से वापस ऊपर आने में और ज्यादा मेहनत, हमारी चेतना सबसे पहले डूब जाती है। तो चेतना को उठाने में बहुत प्रयास लगता है। फिर आते ही सबसे अच्छा पल लगता है कि अरे अब इतने दिनों बाद आए घर से, 2 महीने हो गए, घर कितना गंदा हो गया। ये शनिवार को हर बार क्लास होती है, क्या फर्क पड़ता है? एक क्लास, एवरीबडी नोज वी वर अवे, क्या है प्रॉब्लम? एक श्लोक रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, भक्तों से पूछ लेंगे, व्हाट इज दिस लेजीनेस? घर का काम कराना है मुझे, वो अच्छा ठीक है, ये घर का हो गया। अभी इस साइड आते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेजीनेस का। ये बिल्कुल लेजी नहीं है। पांचों भक्त जो बैठे हैं, 5 पांडव। हाँ, तो एक ही चाहिए मुझे, आपसे दीजिए आप। That was genuine because you were already out of the home for so many hours. The body needs rest. That is fine. Huh? Which ones were the material activities? Outing was not material activity. You were in the association of. Acha, did you go with devotees or not? हाँ हाँ, नहीं ठीक है। Sometimes we are genuinely tired. That is fine. Yes, I'll keep looking at you unless you give me an example. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, टेम्पल जाना हो गया। What else? Yes, अभिषेक प्रो, घर की साफ सफाई हो गया, और कुछ? सॉरी, हाँ हाँ, सी माता जी नो where are we lazy? हाँ? नहीं, वो उसको अपराध कहते हैं। इसलिए एग्जांपल अपना खुद ही देना चाहिए। See how active we are when we are working in office. Are we not active there? So active कि ये यदि काम मैंने नहीं किया, मेरे हाथ से नहीं निकला, तो कंपनी डूब जाएगी, है ना? कल स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। एग्जांपल बता रहा, बाहर घूमते रहते हो आप। धर्मेश, हाँ, बाहर घूमने थक जाते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए धर्मेश? हाँ, सोना चाहिए। बाहर मत घूमो, घर में आके सो जाओ 20 घंटा। So in so many activities we are, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सोसाइटी में गणपति सेलिब्रेशन है, and I am part of the managing committee.
I have to plan, I have to assist. So much energy I am spending there that my own sadhana is taking a toll. Ganesh will be happy if we leave our 16 rounds and go there, dhinchak. Huh? We can do it. Okay, I am in the committee, some decisions have to happen, I have to assist. But then why should my sadhana go back on the back seat? Why should I compromise on my sadhana? Right? That is minimum required. I should do. ऑफिस का काम है तो ऑफिस का काम तो रहेगा, हमेशा रहेगा. Do I progress in my career only if I leave Hare Krishna? तभी होगा क्या प्रोग्रेस? 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम जब करने में लगता है. 2 घंटा यदि मैं जब नहीं करूंगा तो मेरा प्रोग्रेस हो जाएगा. इतना काम मैं करता हूं क्या? जय श्री कृष्ण भगवान की जय. So this is spiritual laziness. कि सबसे पहले हम उठते ही हम अपने ऑफिस का, आजकल क्योंकि अभी मोबाइल में डाल दिया है सबने, स्मार्टफोन इसलिए दिया गया है आपको, है ना. This Teams is there and the Slack is there and you keep on getting updates. Today that is my situation. Today I mean in last 3-4 days my life has been made hell by this particular issue which we are facing in our production, है ना. तो I had to tell कि भैया 1-1.5 घंटा मैं नहीं रहूंगा. Anyway मुझे कुछ करना नहीं है, but I have to see as a manager, see things are happening, coordinate and this and that. So on the way back from railway station today to home, I was continuously on the calls. So ये क्यों दिया गया है? लेकिन मुझे क्या अपना चैंटिंग कॉम्प्रोमाइज करने से, मेरा साधना कॉम्प्रोमाइज करने से ही वो सॉल्व होगा? नहीं, वो सॉल्व होना होगा, वो हो जाएगा. मुझे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं. Right? So, Buddha-kesh practical application in our life means that we leave this spiritual laziness. We become spiritually active. It is okay to say yes to something and no to something in spiritual life. We need to make a balance. This seva I will be able to do, this seva I will not be able to do. This much standard I will be able to follow in my personal sadhana, this standard I will not be able to follow, but I will continuously try to come up to the higher standard, है ना. वो करना पड़ता है, परंतु जो हम कर रहे हैं, जो हमने कमिटमेंट अपने आप से किया है, प्रभुपाद से किया है, भगवान से किया है, वो कमिटमेंट को उधर दिस शुड नॉट, इट्स नॉट बी शेकी, है ना. अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मासु प्रसिद्धति. डिवोशनल सर्विस शुड बी अप्रतिहता. अप्रतिहता का मीनिंग क्या है? कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड. सो यू हैव टैप्स, किचन में टैप्स और बाथरूम में टैप्स हैं सबके पास, है ना. हम नहाने जाएंगे या बर्तन के लिए या खाने कुकिंग के लिए टैप ओपन करेंगे, तो टैप से पानी कैसे आता है? थोड़ा आया फिर रुक गया, फिर थोड़ा आया फिर रुक गया, फिर थोड़ा आया फिर रुक गया. क्या करोगे आप? कितनी गालियां निकालोगे वो टैप को और वो पानी की टंकी संभालने वाले को और मैनेजमेंट कमेटी को, और सबकी लाइन लगाएंगे ना हम, है ना. बिकॉज इट इज नॉट कमिंग कंटिन्यूअसली. The water has to flow continuously, but our sadhana is not continuous. Our sadhana is जन्माष्टमी पे, एकादशी पे 64 माला, द्वादशी पे माला की तरह मिली नहीं रही. इतना जब किया कल कि बस माला ही फट गई मेरी. हाँ, तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं घन तरल. एट आवर लेवल, एट द लेवल ऑफ अ साधका और डिवोशनल सर्विसेज, घन तरल मतलब कॉन्सेंट्रेटेड देन डाइल्यूटेड, देन कॉन्सेंट्रेटेड देन डाइल्यूटेड. साइन वेव, दो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, साइनसॉइडल वेव, ग्राफ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है. As much as we can maintain this graph as a 10, what क्या था, 10, 30, 10, 60, right? Math students, है ना. Jinisha can understand maybe. No? अभी तक आया नहीं sin, cos, tan, cot, sec, cosec. 10th में माता जी की पढ़ाई चल रही है. है ना. Anyway, so continuous line, मुझे उसको स्टडी करना है. बम्प्स
जितने कम होंगे उतना मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। एक दिन में 64 माला करने से भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगी यदि अगले दिन हमारी चेतना मेंटेन नहीं हो रही है तो। इट्स नॉट लाइक हमको नहीं करना चाहिए, जब अधिक करना चाहिए, जब मौका मिले तब करना चाहिए, परंतु उसको स्टेडीनेस इज रिक्वायर्ड, है ना। सो डेली हियरिंग is required, daily chanting is required, daily bhoga offering, whatever I eat, you know, sometimes I eat prasad, sometimes I eat non prasad, that is again minimize। ठीक है, हमारे लेवल पे हम नहीं कर पा रहे हैं, मिनिमाइज कीजिए। nothing can be, things cannot be stopped at once, please understand that। हम लोग ना बहुत जोश में आते हैं, कल से ये बंद कर दूं, ऐसा नहीं होता है। तो कल से बंद होता है, फिर वापस डिजायर्स आती हैं, फिर वो फॉल डाउन, राइट। मिनिमाइज एवरी डे, मिनिमाइज मटेरियल डिजायर्स, ठीक है। दैट इज काउंटरएक्टिंग स्पिरिचुअल लेजीनेस, एंड देन वी बिकम गुड़ाके, देन वी आर डिसाइपल्स ऑफ अर्जुन, है ना। व्हेन वी आर स्टडीइंग भगवद गीता। क्या बात है, आज तो पूरा टाइम निकल गया ऐसे, 24:25। Then 25th translation is, in the presence of Bhishma, Drona and all the other chieftains of the world, the Lord said, just behold Partha, all the Gurus assembled here. Can somebody read the purport? As the superstore of all entities, Lord Krishna could understand what was going on in the mind of Arjuna. The use of word Rishikesh in this connection indicates that he knew everything. And the word Parth, not a son of Kunti or Pritha, is also similarly significant in reference to Arjuna. So देखो, this Krishna is, I'm sorry, Arjuna is saying this, sorry, Sanjay is saying these words, and he's saying कि कृष्ण ने ऐसा कहा, क्या कहा? Just behold Partha, all the Kurus assembled here. अभी आचार्य टेल कि ये कुरु शब्द का क्यों इस्तेमाल किया है, क्यों प्रयोग किया है कृष्ण ने यहाँ पर। पश्यतान समवेतान कुरुनिति, समवेतान कुरु, ये सारे कुरु वंशी यहाँ पर उपस्थित हैं इस बैटल ग्राउंड में। तो आचार्य बताते हैं कि कृष्ण ने जानबूझकर ये कुरु शब्द का यहाँ पर उपयोग किया है। वो योद्धा बोल सकते थे, है ना, वो कुछ भी शब्द ले सकते थे, इतनी सेना खड़ी है। कुरु क्यों? क्योंकि अर्जुन भी कुरुवंशी है, और ये शब्द बोलकर भगवान कृष्ण अर्जुन का ये जो आसक्ति है, जो संबंधों के प्रति, कुरुवंशियों के प्रति, अपनों के प्रति, वो उस आसक्ति को बाहर निकालना चाहते, उसको उजागर करना चाहते, ठीक है। तो कृष्ण वांट्स टू ब्रिंग अर्जुना's attachments out, so he's and then Prabhupada says that Rishikesha again used, Rishikesh यहाँ पे शब्द यूज किया है because now Sanjay is also telling to Dhritarashtra कि Rishikesh, Krishna, he knows everything, you know, Krishna, Rishikesh का meaning वो है, he's the master of the senses and he knows everything, ठीक है। आगे somebody else can read as a friend say, Prabhuji side, थोड़ा जोर से पढ़िए प्रभुजी, loudly। पृथा वसुदेव, Arjuna want to stop there. Krishna never existed from the son of his heart. The mind of Arjuna was created by the Lord. तो अर्जुन को पृथा, सो ये सब प्रभुपाद इतना डिटेल क्यों दे रहे हैं परपोर्ट में? हाँ हाँ, पर उनको पता है ना पार्थ, क्योंकि this book was written when, commentary was written when Prabhupada went to the west, his intention was to preach to the Westerners who do not know anything. So Prabhupada is inserting all details in the purports, है ना। Arjuna was the son of Pritha, and who is Pritha? Pritha is the sister of the of Vasudev. Vasudev, who is Vasudev? Krishna's father. ये सारा प्रभुपाद ने एक लाइन में डिटेल डाल दिया,
right? So Krishna's father's name is Vasudev. Okay, sometimes people are confused कि वासुदेव तो कृष्ण के पिताजी का भी नाम है, कृष्ण का भी नाम वासुदेव है, ऐसे नहीं, वो वसुदेव है और वसुदेव के पुत्र मतलब वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र, ऐसा। जैसे कुंती पुत्र मतलब कौन्तेय, है ना, पार्थ मतलब पृथा के बेटे पार्थ, ऐसा ये संस्कृत में the words forms change. So he agreed to the charioteer. Now so the mind of Arjuna was predicted by the Lord in the friendly joke. So it will again come आगे के श्लोकों में भी क्लियर होगा. So Krishna is teasing Arjuna. देखो सारे तुम्हारे वाले ही हैं, ये तुम्हारे भाई बहन ही खड़े हैं सब इधर, है ना, that way. Because he wants to bring out those attachments, है ना. He wants to speak Bhagavad Gita. Krishna wants to speak dharma. Now, in order to speak dharma, he wants to put Arjuna into illusion. Arjuna is a pure devotee. He is not in illusion that way, right? So Krishna is setting the environment, setting the stage. Nato Natyam Rodhara. Kunti Maharani praising the Srimad Bhagavatam, right? That you are the biggest dramatist. Krishna को बोलते हैं. Krishna is setting the stage for himself. ठीक है? ठीक है, तो आगे वाला श्लोक भी पढ़ते हैं and then let's finish in 5 minutes. Somebody else can read the translation, Mataji's side. Translation of verse 26. Translation. There Arjuna reading the feelings of the armies of both partners. His father's grandfather's teachers, maternal uncles, brother's son, grandsons, friends, and also his father-in-law, and well-wishers. Okay, purport. Somebody else? Prabhuji side. Now see all kinds of relatives. You could see persons like Purishrava. who were his father's contemporaries. Contemporaries मतलब समकालीन, उस समय के ही थे, उसके पिताजी के टाइम के राजा. Grandfather Vishnu and Somdev. Teachers like Acharya and Kripacharya. Paternal uncles like Shalya and Shakuni. brothers like Duryodhana. Sons like Lakshman. Friends like Ashwathama. Well-wishers like Krituvarma, etc. You could see all the armies which contain many of them. Yes. ठीक है. Next translation. हाँ माताजी. हाँ पढ़िए हिंदी में. 27. जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला. ठीक है. So तान समीक्ष से कौन्तेय सर्वा बंधून अवस्थितान, है ना. When the son of Kunti, Arjuna saw all different grades of friends and relatives, this is what exactly Krishna wanted. ठीक है, कि अपने संबंधियों को देखें और वो मोहित हो जाएं, अर्जुन, है ना. And when he saw this shloka is being spoken by Sanjay to Dhritarashtra, ठीक है, friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. So 28 से new section is starting, ठीक है ना, 28 to 46, and that is actually is called Arjuna Vishad Yog. ठीक है ना. The crying of Arjuna, the 5, he will tell his reasons. Actually, he will tell 6, 5 reasons for proving to Krishna that why this fight is not necessary. ठीक है ना. तो ये हम नेक्स्ट वीक में लेंगे. ठीक है. तो इसमें से एक जो है देखो सेकंड लाइन ऑफ द श्लोका, कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निदम अब्रवीत. ठीक है, अब्रवीत मतलब कहा, स्पोक. विषिदन्न मतलब while lamenting, जब वो दुख
शोक कर रहे थे, है ना। एंड कृपया पर्याविष्टो, किसके अभिभूत होकर, आविष्ट, आविष्ट मतलब टू कम अंडर द कंट्रोल ऑफ समथिंग, आविष्ट, है ना। किसके कंट्रोल में, किसके आवेश में आकर, कृपया, कृपया पर्याप्त, कृपया का मतलब कंपैशन, दया, करुणा। तो ये देखकर अर्जुन को इतनी करुणा हो गई कि अरे मुझे इन सब के साथ में फाइट करना है, युद्ध करना है। सो फर्स्ट reason which Arjuna is going to give to Krishna why I should not fight is compassion. क्यों इनको करना चाहिए, ठीक है ना। तो now there is a homework for the next week when we join. The homework is think about what is compassion and what is misplaced compassion. ठीक है, सही कंपैशन, सही करुणा क्या है और गलत तरीके से अप्लाई की गई करुणा क्या है, ना, दोनों के बीच में फर्क क्या है। एग्जांपल्स, ठीक है ना, we need examples the way we discussed today, practical examples. ये करुणा का उदाहरण है और ये मिसप्लेस्ड का मतलब क्या बोलेंगे, मिसडायरेक्टेड लव, मिसप्लेस्ड कंपैशन, है ना, गलत गलत करुणा, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।